A very good morning to all of you. I take this privilege to extend a warm welcome to all the students, faculty members, and our guest and speaker of the day, Engineer Vishal Sharma, in this DBT sponsored workshop on the problem solving and ideation. Engineer Vishal Sharma is an eminent speaker, project scientist, and chief mentor of Innovation Hub at Pushpa Gujral Science City, Kapurthala. He has involved he has been involved in many innovative projects and played a very significant role in their fabrication and the practical implementation. He has published many research papers in the journals of national and international repute. He is here with us to share his ideas. He is here with us to share his ideas on innovation about problem solving and various activities of Innovation Hub at Science City. Innovation means introducing new ideas, furthering progress in the society. Innovation is the core reason for how we exist in the modern world, and it is demand of the future for our betterment. With these ideas in mind, we have Innovation Hub in PG Department of Physics also. The students of KMB always try to work towards innovations in demonstrating and implementing the concepts of science and technology for the betterment of society. With the zeal to learn something new, they have visited the Science City many times, and the Science City has played a great role in shaping their minds and developing the scientific temperament. Without taking much time, I would like to request Vishal sir for sharing his ideas with all of us. Yes, Vishal sir. Uh, First of all, good morning to all the dignitaries, all the teachers, all the staff members, students. Uh, I'm feeling very much privileged to be invited here for this session. Today, I will be telling you about innovations and how it will be useful in our daily life and its importance for the sustainable development. कि जो हम sustainable development की बात करते हैं उसमें ये कैसे होता है तो during this session, I will tell you about the success stories, about innovations, some failure stories that we can learn from them. So again, I'm associated with this prestigious institution that is Pushpa Gujarat Science City since 2010 and have been involved in many innovative ideas. And these ideas that we received from the school students, even from the college students, and what we did, and we just transformed their ideas into practical one. सो यही बच्चों का मोटिवेशन मिलती है अगर वो चीज़ कोई सोचते हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करवा दें तो दे फील वेरी मच फीलिंग वेरी मच लाइक अ साइंटिस्ट फीलिंग एंड दे जस्ट अपने आइडियाज़ को वो बताना शुरू कर देते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हुआ है सो एक मोटिवेशन मिलती है उनको कि इन फ्यूचर स्कोप ऑफ वर्क दैट दे कैन डू एवरीथिंग लाइक अदर कंट्रीज अदर स्टूडेंट्स दे आर डूइंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज तो ये होता है कि पहले तो बच्चे में ये सोच नहीं होती कि जो मेरा आइडिया बाकी वो चेंज हो सकता है वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है हमारी सोसाइटी को कि नहीं तो वो इस सेशन में मैं आई ट्राई कि मैं आप सभी को मोटिवेट करूं कि जो इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं उनकी वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हम बात करेंगे कैसे इनोवेशंस ने हमारी लाइफ को चेंज किया इसके बारे में बात करेंगे तो I think I'll start my presentation. First of all, I want to share my presentation. So is it visible to all? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So the topic is thinking out of box for problem solving and ideation. As you know, बच्चों के thinking out of box, we are talking about a lot about innovations and inventions, how it works, how to think out of the box. हम कैसे out of the box सोचें, हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें कि जो challenges आए उसको accept करें और उन challenges को opportunities में convert करें. तो first of all, let's start with the scientific thinking. बच्चों so even in our constitution under article 51A it is mandatory to develop a scientific temper. It is our fundamental duty
for every citizen, not for me, not for the teachers, it's for everyone to develop scientific temper, because it helps in developing secularism, humanism, and spirit of inquiry and reform. Okay. तो ये चीज़ें जो है, साइंटिफिक टेम्पर क्यों ज़रूरी है, ताकि हम रैशनल थिंकिंग को जनरेट कर सकें और बता सकें कि जो लॉजिकल थिंकिंग से हम जो अपने आप को डिसाइड, so that's why it is mentioned in our article 51 in our constitution. Again, we all are familiar with the terms like inventions and innovations, so I'll discuss this. What is invention? Sir ने पहले बताया introduction में कि हाँ innovations होती हैं to adding something new in existing technology. And what is there is a slight difference between invention and innovation. तो invention students क्या है कि creation of the product, for the creation of the product एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम. जो पहले टाइम में हम कोई चीज नई लेकर आए जो हमें पता नहीं थी, उस चीज को हम क्या टर्म देते हैं, इन्वेंशन. लाइक थॉमस एडिसन, ही इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब. सो फर्स्ट टाइम उसने ये इसका आविष्कार किया. ऑल ऑफ अस नो कि उन्होंने कितना फेलियर्स को करते हुए ये चीज चैलेंज एक्सेप्ट की, उसके बाद ये चीज का उन्होंने आविष्कार किया, इन्वेंट किया ये चीज. सो ही इज एन इन्वेंटर. नाउ टॉकिंग अबाउट इनोवेशंस, आज के दौर में इनोवेशंस की बहुत बात होती है कि इनोवेशंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारे सक्सेस में, हमारी प्रोग्रेसिव ग्रोथ में. सो इट इज़, if someone improves or make significant contribution to an existing product, process or service, then we can get. Suppose I'll talk about electric bulb. उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब किया, उसके बाद हमारी इनोवेशंस क्या आई? इफ यू रिमेंबर CFL, compact fluorescent lamps, then what, LED bulbs हम अपने घरों में देखते हैं. all these thing is through the innovations. so transformation हो रही है. आज के टाइम में हम LEDs बल्ब घर पे यूज कर रहे हैं. ओके. इसी तरह जो स्टीव जॉब्स है, जो कि एप्पल है, जो कि जानी जाती है इनोवेशंस के लिए. तो स्टीव जॉब्स थे जो CEO थे फॉर्मर, अब वो नहीं है, बट ही वाज वेल नोन फॉर हिज इनोवेशंस. उन्होंने काफ़ी इनोवेशंस लेकर आए अपनी कंपनी में, जो कि आज वेल रिकॉग्नाइज्ड एप्पल कंपनी जानी जाती है मोबाइल फोन्स में और अदर टेक्नोलॉजीज में. सो बच्चों, अब बात करते हैं कि क्रिएटिव पर्सन्स, हम कहते हैं कि क्रिएटिव पर्सन्स कौन से हैं, तो वो हम ही हैं. बट हमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएटिव पर्सन्स बनाती है? सो फर्स्ट इज क्यूरियस. हमें क्यूरियस होना पड़ेगा, वेरी एंशियस टू नो व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द हिडन साइंस बिहाइंड एनी प्रोसेस. अगर ये थिंकिंग आ गई तो हम आगे बढ़ जाएंगे. enjoy challenges. if you think that there is an enjoy, most of the times what we think that कि ठीक है हम अपने comfortable zone से बाहर नहीं निकलना चाहते, we avoid these challenges, but try to enjoy these challenges, try to bring out solution for these challenges. okay, then optimistic means you all know that कि हाँ positive will come out. ठीक है. सो इमेजिनेशन प्लेज अ वेरी गुड रोल. एक साइंटिस्ट है, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज. ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन. तो वो कहते हैं कि इमेजिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नॉलेज होना ठीक है, एक एडिशन पॉइंट है, बट इमेजिनेशन भी होना चाहिए. अगर हमारी इमेजिनेशन होगी तभी हम प्रोग्रेसिव ग्रोथ की तरफ जाएंगे, तभी हम न्यू चीज निकाल पाएंगे. Later on we will discuss about many imaginative things that will happen in 2030. सीज प्रॉब्लम्स एज अपॉर्चुनिटीज. वो जो आदमी है क्रिएटिव है, वो क्या देखा है, अपॉर्चुनिटीज देखता है प्रॉब्लम से. वो आगे आकर काम करता है कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देन आई विल ब्रिंग द सोल्यूशन फॉर दैट, और डज नॉट गिव अप इजीली. वो अपना गिव अप नहीं करता. सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिएटिव पर्सन्स. ऑल आर क्रिएटिव, बट द थिंग इज वी हैव टू originate, we have to take out such characteristics in ourselves. सभी हमारे अंदर मौजूद है. the thing is we have to open the doors of all these things. So creative thinking, how to think creative. So what is box? हम कहते things out of the box. Box, what it defines our thinking process, the limit of thinking, कि हम कितना सोचते हैं. So box defines limited thinking, कि हम एक बॉक्स की बात करें तो हम अपने ब्रेन की बात कर रहे हैं कि हम अपना लिमिटेड सोच रहे हैं, उससे आगे हम बढ़ना नहीं चाहते, बिकॉज वी वांट टू स्टे इन अ कंफर्टेबल जोन. और हम अपने बॉक्स के अंदर ही रहना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वी फील सेफ, कि हम जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, हो जाएगा, अपने आप कोई और आएगा कर देगा. सो दीज थिंग्स व्हिच कीप्स यू इनसाइड द बॉक्स. नाउ
अब ये चीज़ें क्यों हैं, हम बॉक्स में रहना क्यों चाहते हैं? देयर इज़ अ फेयर टू रिस्क रेपुटेशन, अगर मैं ये कर दूंगी तो ये गलत हो जाएगा तो सभी क्या सोचेंगे, सो फेयर टू टेक रिस्क। तो ये चीज़ एक बड़ी चीज़ है कि जो चीज़ हम सोचते हैं, हर बंदा ये चीज़ सोचता है कि अगर मैं ये चीज़ करूंगा तो पता नहीं क्या होगा, तो ये चीज़ आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज टू अवॉइड द चैलेंजेस, कि मैं ये चैलेंजेस नहीं एक्सेप्ट कर सकता, ये मैं कर ही नहीं सकता। ओके, सो ये चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब इन बॉक्स से बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहले हमें क्या चीज़ करनी चाहिए? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स अराउंड यू। आपके इर्द गिर्द कौन सी समस्याएं चल रही हैं, कौन सी प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करिए। तो काफ़ी आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी प्रॉब्लम्स की अगर आप देखोगे। सो ट्राई टू ब्रिंग आउट सोल्यूशंस फॉर दैट प्रॉब्लम्स। डू योर रिसर्च वर्क्स। नाउ अ डेज इंटरनेट इज अवेलेबल। ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्स बहुत ज़्यादा है, वी कैन गेट इजीली ऑल दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, बुक्स वी कैन रीड, वी कैन फाइंड आउट सोल्यूशंस थ्रू इंटरनेट। ओके, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, प्रोवाइडेड कि हमें क्या चाहिए, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड टू ब्रिंग आउट विद सॉल्यूशंस, to think about that, to think about the solutions of that problems. We have to keep our mind open. Determination needs, आज आपका दिल कर रहा है कि इनोवेशंस करते हैं, कल हम बैठ जाएं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो परसिस्टेंस जरूर होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन जरूर होनी चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ करनी है इनोवेट, तो उस पर ध्यान से आपको लगातार काम करना पड़ेगा डिटर्मिनेशन के साथ। सो these all are the steps to think out of the box. सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स, आपको अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। इफ देयर आर चैलेंजेस, ट्राई टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस। सो दीज एरोज कैन ब्रिंग, कैन लेट यू नो दैट हाउ द अल्टरनेटिव्स कैन बी ब्रॉट आउट। सो यू कैन सी हियर कि बाहर दीवार की दूसरी तरफ जाने के कितने तरीके हैं। ठीक है, तो आप जैसे मर्जी जा सकते हैं। तो 3 अल्टरनेटिव्स, यानी कि देयर आर ऑलवेज अल्टरनेटिव्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट अल्टरनेटिव्स। अब परसेप्शन क्या है, हमारी जो इनोवेटिव आइडियाज को रोकता है, क्या चीज़ है? सबसे पहली जो थॉट आती है, अगर आप अपने आप को स्वॉट एनालाइज करें, तो यही होगा कि आई एम नॉट इनोवेटर, आई एम नॉट बैकग्राउंड, आई एम नॉट बिलोंगिंग टू द साइंस फ्रेटर्निटी। ठीक है, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, यही सबसे पहली सोच होती है। बट ऐसी चीज़ कुछ नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, इफ यू हैव इनोवेटिव आइडियाज, ट्राई टू परस्यू दैट इनोवेटिव आइडियाज। उसके संबंध में आप मदद लीजिए अपने फ्रेंड से। ठीक है, सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आई एम नॉट एन इन्वेंटर, कि मैं इन्वेंटर नहीं हूँ। आई कैन डू बी द फर्स्ट, आई कांट बी द फर्स्ट पर्सन टू थिंक ऑन दिस, समवन माइट हैव थॉट इट। वो हमेशा बंदा यही सोचता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये कोई और कर लेगा। तो यही चीज़ जो की है, जो हमारी इनोवेशंस को सुप्रेस करती है। और बच्चे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक स्टडीज में पाया गया कि जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट लेवल पे, उनमें इमेजिनेशन बहुत होती है एज कंपैरिजन टू टीचर्स और रिसर्चर्स। ठीक है, तो जो बच्चे हैं, जो वो सोच सकते हैं, वो कोई और बंदा सोच ही नहीं सकता। अब रोल ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन का रोल क्या है हमारी सोसाइटीज में लिए, हमारी प्रोग्रेस ग्रोथ के लिए? दैट इज द फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटीज, इनोवेशंस हमारी होनी चाहिए। फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी, हमारी जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, उसकी फर्दर सस्टेनेबिलिटी के लिए, फर्दर उसकी प्रोग्रेसिव ग्रोथ के लिए ये चीज़ इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए इनोवेशंस की। फॉर द एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, तो उस पर भी अगर हम इम्प्लीमेंट्स बनाने शुरू कर दें अच्छे अच्छे, जिससे कि किसानों को मदद मिले, तो ऐसी चीज़ें भी इनोवेशन से की जा सकती हैं और इनमें एडवांसमेंट की जा सकती है, और हम प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को एनहांस कर सकते हैं। वी ऑल नो दैट इनोवेशन लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन। अगर इनोवेशन को आप अडॉप्ट करते हो तो क्या होगा? मॉडर्नाइजेशन की तरफ आप आगे बढ़ोगे। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, like जुगाड़ innovations, we are familiar with this term जुगाड़। पंजाबी हैं तो पंजाबी हर बार जुगाड़ की बात करते हैं। so जुगाड़ is what? It is a temporary solution of a problem। ठीक है, तो जो मोस्टली जो जुगाड़ इनोवेशंस की जाती है, वो पढ़े लिखे नहीं होते। ठीक है, वो पढ़े लिखे नहीं होते। उनका क्या होता है, उनके अंदर एक थिंकिंग प्रोसेस होता है, ये प्रॉब्लम आ गई, इसका सोल्यूशन ढूंढना है, तो दे परस्यू दैट प्रॉब्लम एंड ट्राई टू ब्रिंग आउट सोल्यूशन इन अ सिंपल वे, इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे। दिस इज कॉल्ड जुगाड़। सो जुगाड़ इज अ माइंडसेट ऑफ द इनोवेटर्स इन विच ही यूजेस हिज स्किल्स टू मेक थिंग्स सुटेबल एंड इजी टू यूज। यही है कि इजी टू यूज हो और सुटेबल हो,
और cost effective हो. This is called जुगाड़ innovations. In Punjab, we all are जुगाड़ी. सो मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड जुगाड़ इनोवेशंस क्या देखते हैं. जो इनोवेटर होता है, बेसिकली इनोवेटर हम ये नहीं कहते कि उसका साइंस बैकग्राउंड होगा. एक फार्मर भी इनोवेटर हो सकता है, एक कॉमर्स बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड का भी एक इनोवेटर हो सकता है. सो उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं पीछे जुगाड़ के, क्या चीज़ है. फर्स्ट इज सीक आंसर्स फॉर द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स विदाउट मच इन्वेस्टमेंट. तो वो कहते हैं कि मेरा पैसा ना लग जाए बट मैं प्रॉब्लम का हल भी कर दूं. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग इट ऑलवेज, जो इनोवेटर अपने दिमाग में रखता है, प्रायोरिटी भी रखता है. डू मोर विद अवेलेबल रिसोर्सेज. जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे ही वो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है. थिंक एंड एक्ट फ्लेक्सिबली. फोर्थ, कीप द प्रोसेस ऑफ डूइंग थिंग्स सिंपल. वो हर चीज को सिंपल वे में करना चाहता है. इजी टू अडॉप्ट, ठीक है, इजी टू इम्प्लीमेंट. सो दीज आर द पिक्चर्स. कई बार हमने देखे हैं जैसे बोतल का उन्होंने शावर बना दिया. सो इट्स अ टेम्परेरी सोल्यूशन. अगर कोई कहे यार मैं शावर नहीं है, तो ये चीज़ बना सकते हैं वो घर पे. सो बोतल यूज्ड एज अ शावर. स्कूटर का मोबाइल जूसर शॉप. वी कैन सी सच टाइप ऑफ जुगाड़ इनोवेशंस अराउंड अस, स्पेशली इन पंजाब. मिनी कूलर, किसी के पास कूलर नहीं है तो वो मिनी कूलर, एक स्क्रैप का बॉक्स पड़ा हुआ, टिन का बॉक्स, उसको कन्वर्ट कर दिया मिनी कूलर में. ये चीज़ बड़ी इजीली वो बना सकते हैं और की हुई है. ये देखो, किसी चीज़ के अपने मोटरसाइकिल को कन्वर्ट कर लिया इस पर ताकि उसकी लोड कैपेसिटी बढ़ जाए. सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ऑफ जुगाड़ टेक्नोलॉजी. So all these things you might have seen in your life around you. So now I'll tell you that कैसे innovation success पे लेके जाया जा सकता है. So it's a very interesting story about Bajaj Autos. They adopted the technology DTSI technology. Initially हीरो होंडा बहुत चलता था, आप शायद नहीं जानते. तो 1990s में हीरो होंडा ही एक नंबर 1 था. उसके बाद बजाज आई. बजाज कंपनी ने क्या किया, एक जर्मन टेक्नोलॉजी है डेट इज DTSI टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली. और क्या है ये टेक्नोलॉजी, नाम तो बड़ा लगता है कि हाँ DTSI. तो ये बेसिकली क्या है, डिजिटल ट्विन स्पार्क प्लग. फ्यूल की इग्निशन के लिए स्पार्क प्लग चाहिए, ठीक है. जैसे आप अपने घर पे किचन में गैस जलाते हो तो वो स्पार्क प्रोड्यूस करते हो, ऐसे ही स्पार्क का काम होता है. तो एक कंपनी ने क्या किया, उसने कहा कि कंबशन के लिए, फ्यूल के कंबशन के लिए उन्होंने 2 स्पार्क प्लग लगा दिए और देखा कि उसका इफेक्ट जो हमारी मोटरसाइकिल की माइलेज पे क्या फर्क पड़ता है. तो काफ़ी इफेक्ट पड़ा. तो उसने इस टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया DTSI, डिजिटल ट्विन स्पार्क प्लग इग्निशन, वेयर दे यूज 2 स्पार्क प्लग्स फॉर एफिशिएंट बर्निंग प्रोसेस. ठीक है, ताकि जो हमारा फ्यूल है वो अच्छे से बर्न हो. अच्छे से बर्न होगा तो क्या होगा, हमारी माइलेज बढ़ जाएगी. ठीक है. सो मिनिमाइज द फ्यूल कंजप्शन. सो जैसे उन्होंने ये DTSI टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की तो उस पर सक्सेस उसने हासिल करनी शुरू कर दी. आज की डेट में देखिए, बजाज है एक टॉप यानी कि सेलिंग मोटरसाइकिल है. और सभी को पता है सैमसंग का सक्सेस और डाउनफॉल ऑफ द नोकिया मोबाइल फोन्स. व्हाई इट इज सो? सैमसंग ने क्या अडॉप्ट किया था, वी ऑल नो दैट एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी. दे हैव अडॉप्टेड एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी, वेयर एज जो नोकिया था उसने सोचा कि मेरे पास भाई है विंडो बेस्ड टेक्नोलॉजी है, मेरा अच्छा चल रहा काम, तो मैं क्यों अडॉप्ट करूं ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी. उसने वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की. और दूसरी तरफ सैमसंग ने ये एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की और उन्होंने इंफॉर्मेशन बढ़ा दी अपनी, यानी कि थ्रू पब्लिसिटी की ये चीज़ ऐसा कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं. तो इस तरह जो सैमसंग का वो सक्सेस आना शुरू हो गया. और वेयर एज जो नोकिया थी उनकी मार्केट गॉट डाउन. वाई डाउन? ड्यू टू लैक ऑफ इनोवेशन. ठीक है, उन्होंने इनोवेशंस को अडॉप्ट नहीं किया. वो सोचते रहे कि हमारा नंबर 1 बिजनेस है. 2000 के राउंड अबाउट हर जगह आपको नोकिया ही मिलता था, सैमसंग दिखता ही नहीं था. ठीक है. तो बट जैसे उन्होंने अडॉप्ट की नई टेक्नोलॉजी सैमसंग ने, और इससे क्या हुआ, उनकी सेल बढ़ गई, उनकी मार्केट नंबर 1 हो गए. और एज अ रिजल्ट नोकिया हैज बीन टेकन ओवर बाय द माइक्रोसॉफ्ट. अभी भी नोकिया अब वो दोबारा से रिवाइव कर रहा है, अभी दोबारा से अपने प्रोडक्ट कर रहा है. बट नाउ इट्स वेरी टफ. यानी कि अगर उन्होंने टाइमली अडॉप्ट किया होता तो वो चीज़ नहीं हो पाती, उनका डाउनफॉल नहीं हो पाता. सो बच्चों, दीज ऑल आर द सक्सेस स्टोरीज एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम द नोकिया कि कैसे उन्होंने इनोवेशंस को अडॉप्ट नहीं किया. आज की डेट में बच्चों ये चीज़ है देखिए, वन शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग. आज की डेट में आप कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हो, मैं भी कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हुई, ठीक है, फिर भी हम कंप्यूटर पे इंटरेक्ट कर रहे हैं.
because we have adopted with the technology, we have learned so many things. So एक बंदा अगर कहे मैं कंप्यूटर टीचर हूँ तो मैं कंप्यूटर का काम करूँगा, वो चीज़ नहीं है। आज की डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाला है, उनको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए और आनी चाहिए, ठीक है। So that's why I'm saying that one should know something about everything and everything about something. Everything का मतलब है अपनी फील्ड में तो आप हो माहिर, whereas आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर फील्ड की होनी चाहिए। और ट्राई टू अडॉप्ट इनोवेशंस को अडॉप्ट करिए। आज की डेट में कोई बैंक जाता है, कोई ज़्यादा जाता नहीं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चल रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज। अब आपको मैं बड़ी अच्छी दिखाऊंगा स्लाइड्स जिसपे कि आपको पता चलेगा यार क्या ऐसी भी चीज़ें थी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू इनोवेशंस। सो बच्चों, सबसे पहले जो कार चलती थी दैट इज मारुति 800। क्या उनमें डिफरेंस था? नो पावर स्टीयरिंग, नो पावर क्लच, कोई पावर क्लच नहीं, कोई पावर स्टीयरिंग नहीं था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, नई कारें आनी शुरू हो गई जिसमें क्या था, पावर स्टीयरिंग था, पावर क्लच था, ठीक है, पावर ब्रेक भी थी, ठीक है। तो इस तरह जो लास्ट में नई चीजें आ रही हैं मार्केट में, क्या आ रही हैं आप देख रहे हो, पावर स्टीयरिंग, पावर क्लच, ऑटोमेटिक गियर, ठीक है। ऑटोमेटिक गियर आ गए हैं अब, तो गियर डालने की जरूरत नहीं है। तो इट्स वेरी बेनिफिशियल कि अब टेंशन खत्म हो गई है। जैसे स्कूटी चलाते हो जिसमें गियर की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसी तरह जो पावर स्टीयरिंग जो नई गाड़ियां आ रही है उसमें ऑटोमेटिक गियर है। अब एक टेंशन खत्म होगी गियर को शिफ्ट करना या नहीं करना शिफ्ट, ठीक है। सो दिस इज थ्रू इनोवेशंस। तो ये चीजें हमें बता रही हैं कैसे इनोवेशंस आने वाले टाइम में, हु नोज कि फ्लाइंग कार आ जाए जिसमें रोड की जरूरत ही ना पड़े। इनोवेशंस चल रही हैं। ऑटोमेटिक ड्राइवर जो गूगल ने निकाली थी, ऑटोमेटिक ड्राइवर वाली थी कि विदाउट एनी ड्राइवर वी कैन ड्राइव अ कार। सो अगेन काम चल रहा है, रिसर्च वर्क चल रहा है उस पर। फोन्स की बात करते हैं हम। स्टार्टिंग में अगर हम इनिशियली देखें कोडलेस, किसी ने शायद अब देखा ना हो बच्चों ने, ऐसे ऐसे फोन्स पहले थे। जो लेफ्ट में देख रहे हो आप, दीज जो टेलीफोन्स थे उनके साथ कोड लगी हुआ करती थी, मूवेबल नहीं थे, एक जगह आपको आकर देखना पड़ता था। अब इनोवेशंस आ गई, इनोवेशंस ने क्या किया, उनको रिप्लेस कर दिया, कोडलेस आ गए। अब बातें करते करते जहां मर्जी घूमिए। बट तब जो इंटरमीडिएट वाला था जिसमें कोडलेस फोन थे उसमें भी थोड़ी सी रेंज रहती थी, उसके ज्यादा नहीं जाते थे, ठीक है। थर्ड स्मार्टफोन्स आ गए, जहां मर्जी ले जाइए, जब मर्जी इसको ऑपरेट करिए, ठीक है। सो ये सारी चीजें क्यों हुई? ये इसलिए हुई क्योंकि विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इनोवेशंस कॉन्टिन्यूसली कंपनीज काम कर रही है इनोवेशंस पे, और आज की डेट में वो सक्सेसफुल है जिसने इनोवेशंस पे काम करना शुरू कर दिया है। डिग्री लेने और वो चीज़ बिल्कुल सेपरेट होगी। आज की जो डिमांड है, गवर्नमेंट की डिमांड है, गवर्नमेंट जॉब्स की डिमांड है या प्राइवेट कंपनीज की डिमांड है, वो है इनोवेशंस पे, कि आप अपनी इनोवेशंस क्या कर सकते हो, आप अपने दिमाग से कैसे इसको चेंज कर सकते हो सिनेरियो को। अब बात करते हैं बल्ब, CFL और LED की। इनिशियली जो बल्ब थे, जो इनिशियली बल्ब थे, उनका देखिए लाइफ स्पैन देखिए कितना था, 1200 आवर्स, ठीक है। और उनके जो लूमेंस थे 450 थे, ठीक है। सभी के लूमेंस, ये तीनों के बल्ब, CFL एंड LED के तीनों के लूमेंस सेम थे। पावर कंजप्शन डिफरेंट थी। सबसे कम पावर कौन ले रहा है? LED 5 वाट, ठीक है। लाइफ स्पैन देखिए 50,000 आवर्स, और लाइफ स्पैन भी ज़्यादा है, पावर कम ले रहा है, ल्यूमेंस भी उतने दे रहा है। सो हम LED को अडॉप्ट करेंगे ही, ठीक है। तो आने वाले टाइम में पता नहीं और क्या क्या चीज़ें नहीं आ जाएं जिससे कि हम आगे के आगे चलते जाएं। तो ये यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, ये आगे चलता जाएगा। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसमें अपना रोल कैसे प्ले करें, ठीक है। हम और कंजप्शन कैसे कम करें। टेलीविजन आपने देखे इनिशियली जो पहले थे वो काफ़ी बड़े थे, उनका जो साइज़ था बहुत बड़ा था, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट थे, हाई पावर कंजप्शन थे, CRT ट्यूब लगी होती थी जिसमें हाई वोल्टेज बनती थी। उसके बाद कलर TV आ गए, पावर कंजप्शन थोड़ी सी रिड्यूस होगी, कलरफुल हो गया। उसके बाद क्या है, कलर HD। उससे पहले LCD आई, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद क्या है लास्ट में, LED TVs, जिनका डिज़ाइन एक कैलेंडर जैसे लग रहा है आपको, ठीक है। अब आने वाले टाइम में क्या पता वो रोल हो जाए, जैसे कैलेंडर को आप रोल करके उठाकर रख देते हो, ऐसे क्या पता टीवी बन जाए, ठीक है। तो ऐसी इनोवेशंस कंपनियां कर रही हैं, ग्लोबल लेवल पे काम कर रही हैं। सैमसंग हर बार अपनी इनोवेशंस को शो ऑफ कर रही है कि हमने ये चीज़ किया, हमारा प्रोडक्ट ले, ये लो, ठीक है।
तो इस तरह जो इनोवेशंस हैं वो अपना रोल प्ले कर रही हैं। ह्यूमन माइंड इज अ स्टोर हाउस ऑफ नोवेल आइडियाज टू टेकल एनी प्रॉब्लम्स। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ह्यूमन जो माइंड है वो सबसे ज़्यादा उसका नोवेल आइडियाज़ का एक स्टोर हाउस काउंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या हो सकता है। फ्लाइंग बाइक्स एक कंपनी है, मे बी आई थिंक जर्मनी में, जो पुलिस वाले हैं जो अपना फ्लाइंग बाइक्स कर रहे हैं, ठीक है, दे आर इन द प्रोसेस, जिसमें रोड्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, नीचे वैक्यूम कुछ ऐसे लगाया होता है वो उड़ रहे हैं। तो सेकंड इज आने वाला टाइम रोबोटिक स्पेसिफिक वर्ल्ड होगा। कहाँ पर हम रोबोट्स देखेंगे? ऑल अराउंड। हम अपनी इर्द गिर्द क्या देखेंगे? रोबोट्स, दे आर डूइंग ऑपरेशंस इन हॉस्पिटल्स, इवन दे कैन डू वर्क इन किचन्स, ठीक है। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द गर्ल्स, इवन फॉर द बॉयज जो घर में काम करते हैं। तो किचन में अगर रोबोट हो तो आप कहे ये चाय बना दो तो रोबोट वही काम करे। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं और आने वाले टाइम में ये चीज़ें आप देखोगे, ठीक है। जो एरोप्लेन्स हैं विदाउट एनी पायलट उड़ रहे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल काफ़ी आगे बढ़ रहा है। नैनो चिप्स आ रही हैं, नैनो का मतलब 10⁻⁹, जिसका साइज बिल्कुल कम कर दिया, स्टोरेज बढ़ गई, सुपर कंप्यूटर्स, फास्ट कंप्यूटर्स। सो हैव यू हर्ड अबाउट स्पेस एक्स? रिसेंट अभी स्पेस एक्स में बारे में सुना होगा, स्पेस एक्स। यस सर। चलिए बात करते हैं। हाँ जी, ये स्पेस एक्स क्या है बताओगे बच्चे? सो स्पेस ट्रिप्स, everybody heard about Elon Musk, CEO of SpaceX। ये एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, एन अमेरिकन एरोस्पेस Yes, sir. मैन्युफैक्चरर है एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन। तो अभी उन्होंने रिसेंटली कुछ लॉन्च किया अपने, यानी कि एज अ ट्रिप वो लॉन्च करेंगे इन फ्यूचर। अभी उन्होंने एक टेस्टिंग की जिसमें वो स्पेस स्टेशन पे लेके गए, अमेरिका का स्पेस स्टेशन है, वहाँ पर लेकर गए उनको। तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें काफ़ी होने वाली हैं। हमारे ट्रिप्स कहाँ पर होंगे? स्पेस पे। देखिए वहाँ पर बिल्कुल ग्रेविटी, जैसे स्विम कर रहे हैं हम पानी में, वैसा आपको महसूस होगा। सो आने वाले टाइम में क्या पता हमारी दुनिया दूसरी प्लेनेट पे हो। ये ऐसा चीज क्यों हो रही है, क्यों हम सोच रहे हैं? कि दिस इज ऑल अबाउट अवर इमेजिनेशंस को हम जब परस्यू करते हैं तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस होती है, दो चीजें होती है, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। फेलियर से कुछ सीखोगे और कोई नई चीज बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको देखने को बहुत मिलेंगी आपको इन फ्यूचर और इन नियर फ्यूचर आई कैन से। सो स्टूडेंट्स नाउ हमारी साइंस सिटी में इनोवेशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हम चाहते हैं कि इनोवेशन, हमारा एक प्रोजेक्ट है दैट इज़ NCSM, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम में हमें एक प्रोजेक्ट दिया है दैट इज़ इनोवेशन हब, जो 2017 में हमने स्टार्ट किया, ओके। और आज की डेट में हमने बहुत सारे आइडियाज़ को डेवलप किया। हम इनवाइट आइडिया करवाते हैं थ्रू जनरल पब्लिक से लेकर स्टूडेंट से लेकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तक, हम सभी से आइडिया इनवाइट करवाते हैं और हम चाहते हैं कि वो बच्चे हमारे साथ जुड़े। और अभी तक हमारे साथ 800 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं थ्रू इनोवेशन हब मेंबरशिप, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। तो हम ये चीज़ इनोवेशन हब ने हमने सेटअप करने का मेन आइडिया क्या है? टू इनकरेज दैट, टू डेवलप इनोवेटिव आइडियाज। जो इनोवेटिव आइडियाज जो बच्चों से आए स्पेशली, और किसी से भी, चाहे फार्मर से आए, उसको हम पहले पढ़ें और चेक करें इज इट फिजिबल, कि ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के है, इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो चीज़ हमारी यहाँ पर टीम कर रही है। एंड साइंटिफिक, हम चाहते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट हो टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हम अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशंस इलॉजिकल थिंकिंग से नहीं, रैशनल थिंकिंग से दें। So PGSE has started a project Innovation Hub। बच्चे इस इनोवेशन हब के अंदर हमने बहुत चीज़ें डेवलप की, उनका मैं एक छोटा सा एक रिव्यू दूंगा आपको कि क्या क्या चीज़ की है। अभी हमने लेटेस्ट जो किया है ड्यूरिंग द COVID-19, हमें पता है टचिंग थिंग्स ऑलवेज अवॉइडेड, ठीक है। हमें पता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस ज़्यादा हो जाता है, इन्फेक्शन फैलने के ज़्यादा तरीके हैं। तो वी हैव डेवलप्ड टचलेस स्विचेस। हमने अपने यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 गैलरीज में,
ठीक है, हमने 2 गैलरीज में ये टचलेस सेंसर्स लगाकर ऐसे स्विच लगा दिए हैं जिससे कि हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जस्ट उनके पास हाथ रखने से ही विदाउट टच उनके पास लेके जाने, अपने आप ही जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं वो ऑन हो जाएंगे। दूसरी बार लेके जाओगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल टर्न ऑफ। तो देखिए बच्चे, आने वाले टेक्नोलॉजीज में आप स्विच बोर्ड में घर जाते हो तो क्या करते हो, प्रेस करते हो बटन। तो ये चीज अब आपको नियर फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगा। सो वी आर वर्किंग ऑन दिस, वी आर सक्सेसफुली डेवलप्ड दिस स्विचेस एंड implemented in Science City. Please do visit Science City and I'll show you that switches. शॉकलेस होंगे, टचलेस होंगे तो शॉकलेस भी होंगे, ठीक है। तो ऐसे स्विचेस हम ये डेवलप कर लेंगे। अब उसके बाद आता है, सॉरी हियर इट इज रिटन स्मार्ट, इट्स अ स्मार्ट डस्टबिन, ठीक है। स्मार्ट डस्टबिन में हमने इनिशियली क्या सोचा, एक बच्चे का आइडिया था, बच्चे ने हमारे साथ ये काम किया है। उसने कहा कि सर अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए और बंद हो जाए, तो वही पुट अ सेंसर, जिससे कि एक मैकेनिकल सेटअप लगाया हमने। जैसे ही आप इस यू कैन सी हेयर द आईज अल्ट्रासोनिक सेंसर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर आईज हम कह देते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में। इसके पास अगर अपना हाथ लेके जाओगे तो ये इट विल तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसका जो कैप ओपन हो जाएगा। सो अपना जो गार्बेज आप वहाँ पर डालिए विदाउट एनी टचिंग, ठीक है। इनिशियली क्या था कि आपको पैर या हाथ से लगाना पड़ता था, ठीक है, टच करना पड़ता था। अब आपको टच करने की जरूरत नहीं है डस्टबिन को। इवन जब वो फुल हो जाएगा तो हमें इंडिकेशन देगा, ओके। अब हमने नई चीज इस पे और ऐड कर रहे हैं। एक हमने सक्सेसफुली ऐड कर लिया है कि जैसे गार्बेज होता है वेट और ड्राई, ठीक है, इनको सेग्रीगेट करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमने यहाँ पर सेग्रीगेशन पे भी सक्सेसफुल इस पे कर लिया है काम। आप अगर उस पर हमने पार्टीशन बनाई है इस डस्टबिन के अंदर, अगर आप ऊपर से गीला है, आपने कुछ नहीं कहना इसको, आपने अगर गीला कूड़ा डाल दिया गार्बेज पे डाल दिया है तो वो गीला एक सेपरेट कंटेनर में चल जाएगा। अगर ड्राई होगा तो वो क्या होगा, एक सेपरेट कंटेनर में चल जाएगा। इसके अंदर ही है, हमने सिस्टम सेटअप कर दिया है। और इसमें हमने मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटीज भी रखी है कि अगर इन एमरजेंसी अगर मोबाइल चार्ज करना है तो कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ तो इसके साथ हमने एक और चीज़ लगाई है, डेट इज टाइम टू टाइम ये क्या करेगा, स्प्रिंकलिंग ऑफ जो हैंड सैनिटाइजर है वो करेगा, ठीक है, टाइम टू टाइम पे। तो इस तरह बच्चे ये इस प्रोजेक्ट में हमने काफ़ी कुछ इस पर एडवांसमेंट की है। इसमें जो सेग्रीगेशन है वेट और ड्राई गार्बेज, जो कि काफ़ी हमें पता है कि मिल जाता है। अब हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ वर्क क्या चल रहा है कि हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग कर सकें ईजिली। आपने फेंक दिया, वो अपने आप आइडेंटिफाई करे विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो वी आर वर्किंग ऑन दैम कि अपने आप वो बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आइडेंटिफाई करे और सेग्रीगेट करे। ये कुछ आइडियाज जो बच्चे ने डेवलप किए हैं बच्चों। BMI मशीन, एक लड़की ने हमें ये आइडिया दिया, तो इस आइडिया पे हमने काम किया। हमारे अंदर जो हमारी जो साइंस सिटी के अंदर हमारी वर्कशॉप्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सारी वर्कशॉप्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। बच्चा आइडिया देता है तो हम बच्चे को लेकर यहाँ पर काम करते हैं। यू कैन सी हियर अ गर्ल, ठीक है। तो BMI मशीन क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स। गाँव में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर हमें BMI पता चल जाए तो हम अपने आप को अवेयर रख सकें। आज तो मशीन आ जाती है, बट इन्होंने मशीन वैसे ही बना दी और इसके नीचे रखा एक ट्यूब रखा, ट्यूब में फ्लूइड भरा। अगेन वी आर यूजिंग द पास्कल लॉ। हमें पता है अगर पास्कल लॉ क्या कहता है, अगर प्रेशर, यू कैन सी हियर अ प्लेटफॉर्म, अगर वहां पर कोई प्रेशर डालेगी तो इक्वल जो प्रेशर है वो ट्रांसमिटेड होगा। तो हमने वहां पर एक वर्टिकल ट्यूब लगाई जहां पर हमने आप देख रहे हो नंबरिंग कर दी, ठीक है। कितने केजी, 5 केजी पे उसका लेवल कितना बड़ा, 10 केजी पे कितना बड़ा, तो हमने मार्किंग कर दी। तो इस तरह, और मार्किंग करने के बाद हमने साइड पे एक स्केल भी लगा दिया। अगर वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है तो अपनी हाइट मेजर करे और अपना वेट से वो BMI अपनी कैलकुलेट कर सके। तो लास्ट में हमने स्लिप भी लगा दी कि आपका एक्चुअल BMI कितना होना चाहिए। इसके बाद बच्चों का था कि अगर रेलवे क्रॉसिंग, देखिए बच्चे मेन चीज क्या है, उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। रेलवे क्रॉसिंग पे आपने देखा है अनमैन्ड रेलवे फाटक्स पे काफी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। तो वहां पर बच्चे ने देखा कि अगर 1 किलोमीटर से पहले ही हम सेंसर लगा दें, यहाँ पर लाइट डिपेंडेंट LDRs बच्चे ने सर्किट डिजाइन किया। तो देखिए बच्चे कोई बड़ी क्लास के नहीं थे ये वाले, ठीक है, ये छोटी क्लास के बच्चे थे। उन्होंने कहा कि सर हमने ये करना है, तो हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाया, ठीक है। LDR सर्किट 1 किलोमीटर पहले लगा दिया, जैसे ही ट्रेन पास हुई तो इंडिकेशन उन्होंने दे दी।
अलार्म लगा दिया कि वहाँ पर जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग था। तो इस तरह ये एक सोल्यूशन कैसे अलार्म कर सकें। उसके बाद आगे ऑल वेदर गो डाउन। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि एवरी ईयर हमारा जो फ्रूट ग्रेन्स है वो खराब हो जाता है। क्यों खराब होता है? क्योंकि वी हैव लैक ऑफ फैसिलिटीज। सो लैक ऑफ फैसिलिटीज की हमारे पास गोडाउन्स नहीं है। तो बच्चे ने ये एक आइडिया दिया हमें कि हम एक ऐसा गोडाउन बनाएं जिसको हम शाफ्ट, रोटेटिंग शाफ्ट के साथ उसको कवरिंग कर सकें, क्लॉथ की कवरिंग हो जाए। जब हमें जरूरत पड़े कि सन निकला है तो उसको हम उसको कवरिंग को हटा सके। So, ऐसे सिंपल आइडियाज। ऑटो सेफ ऑटो रिक्शा, तो हमने एक सर्किट डिजाइन किया जिसपे कि हमने देखा कि काफी हो चुके हैं हादसे, जिसमें कि अगर ओवरलोडिंग होती है ऑटो रिक्शा की तो उस वजह से काफी एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। तो हमने एक सर्किट बनाया जिसपे कि हमने, ये सारा सर्किट डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम यू कैन से। तो सेफ ऑटो रिक्शा के अंदर हमने रख दिया। जैसे ही कोई उस पर बैठता तो उसके अगर वेट ज्यादा होता, प्री डिफाइंड हमने यहाँ पर एक प्रीसेट लगा दिया, वैल्यू लगा दी है, जिसमें कि अगर 100 केजी या 200 केजी से अगर एक्सीड करेगा, सपोज 200 केजी से एक्सीड करेगा, तो उसका ऑटो रिक्शा अलार्म करेगा और चलेगा ही नहीं। ठीक है, उसकी इग्निशन कंट्रोल होगी। तो ये कैसी कंट्रोल होगी? विद द लोड। उसके बाद है ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स है कि हमें डोर ओपनिंग पे हमें पता चल जाए, हमें कोई घर पे अगर आया तो ताकि थेफ्ट्स रुक जाए तो अपने आप ऑटोमेटिकली हमें कॉल दे दे। तो ऐसे सर्किट्स हमने डिज़ाइन किए। तो ये जो आइडियाज़ जितने भी हैं ये बच्चों के आइडियाज़ हैं। एक ये ग्लूकोज वाला था, ये एक इंजीनियरिंग बच्चे का था आइडिया, जिसमें कि इसने बताया कि अगर ग्लूकोज का अगर ख़त्म हो जाए तो कई बार हमें पता नहीं चलता। तो उन चीज़ को रोकने के लिए एक हमने वहाँ पर स्विच लगा दिया, अंडर द एक्शन ऑफ स्प्रिंग। जैसे ही वो बोतल ऊपर जाएगी, वेट लेस होगा, बोतल ऊपर जाएगी तो ऊपर जाते ही एक बटन प्रेस हो जाएगा। तो उससे पहले ये इंडिकेशन हमें देना शुरू कर देगी कि बोतल इज गोइंग टू एम्प्टी। अर्थक्वेक सेफ्टी से डिवाइस बनाई है हमने, जिसपे कि एक प्रोटोटाइप डेवलप किया था, जिसपे कि बच्चे कह रहे थे कि अर्थक्वेक आ जाए तो हम कैसे बचे जाए, अगर कोई सो रहा है तो उसके ऊपर प्रोटेक्टिव शील्ड कवर आ जाए। तो इस तरह हमने अर्थक्वेक सेफ्टी डिवाइस तैयार किया। फ्रूट हार्वेस्टिंग टूल, एक स्टिक लिया, उसके साथ हमने कटर लगा दिया और उसका जो है नीचे एक हमने जैसे ब्रेक टाइप होता है, ब्रेक को प्रेस करते हो वैसे ही आप प्रेस करोगे तो ऊपर वाला जो एक्शन है, कटिंग एक्शन, वो हो जाएगा। तो इस तरह ये जो फ्रूट कटिंग करने के लिए हमें पेड़ों पे चढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। ओल्ड मैन ब्लाइंड स्टिक, ये बच्चों को एक आइडिया था कि कैसे हम, अगर ओल्ड मैन है जिसकी नज़र कम है तो उसको, उसके लिए ये उनके लिए अगर वो चलना है तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि उसके इर्द गिर्द कोई ऑब्स्टेकल है या नहीं है, ताकि वो गिर ना सके। तो यहाँ पर उसने एक स्टिक डेवलप की जिसपे कि सेंसर लगाया गया और वो असिस्ट करती थी। अगर जहाँ पर आगे का रास्ता साफ होती तो वहाँ पर वो ग्रीन इंडिकेशन और अलार्म देती थी कि ये सेफ है। ठीक है, अगर ऑब्स्टेकल आती तो उसका अलार्म दूसरा होता था। सो बाय हियरिंग दैट अलार्म, जो ओल्ड मैन है या जिनकी आईज कमजोर है वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाते कि आगे कुछ है या नहीं है। उसके बाद ये ऑयल एक्सट्रैक्शन डिवाइस हमने तैयार की, जिसपे कि आप देख रहे हो ये प्रोटोटाइप हमने डेवलप किया और इसके प्रैक्टिकली इसको देखा। बच्चों ये देखिए, ऑयल अगर स्पिल ओवर वाटर हो जाए तो हमारी जो वाटर है वो रहने के योग्य नहीं रहते। इवन इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक लाइफ, फिशेस के लिए सही नहीं है, या और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, पॉन्ड में रहते हैं, उनके लिए सही नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ जाए कि ऑयल टैंकर पलट गए, तो जैसे ऑयल लीकेज हो गई, तो हमने एक रोटेटिंग शाफ्ट तैयार की, एक डिस्क थी रोटेटिंग, वो उसके ज़रिए जो पॉन्ड वाटर के साथ हमेशा टच में रहती। जैसे हम घुमाते, इट्स मैनुअली, अगर हम उस पर घुमाते तो उसके साथ स्टिक कर जाता ऑयल। जैसे स्टिक करेगा तो आप देखते हो यहाँ पर स्क्रैपर लगा हुआ है, जितना भी ऑयल था वो बाहर हमने निकाल दिया। So this is called oil extracting device. कॉर्न एक्सट्रैक्टर के लिए एक हमने यहाँ पर यूज किया, 2 पुलीज लगाई हॉरिजॉन्टल फ्रेम पे। ये देखिए आपने वुडन फ्रेम हमने तैयार किया। उस वुडन फ्रेम से हमने एक रोटेटिंग शाफ्ट, एक अंदर एक वैसे लिया जिसके अंदर क्या था, एक हमने एक थॉर्न टाइप, यानी कि जैसे थॉर्न होते वैसे लगा दिए गए स्टील के। तो जैसे वो घूमता, जैसे गोल गोल घूमता तो हम छल्ली उसके ऊपर डालते, तो उसके रोटेटिंग शाफ्ट से क्या होता है,
वो उसकी स्ट्राइक किसके साथ होती, थॉर्न के साथ, जैसे कंडे होते हैं ना वैसे उनके साथ स्ट्राइक होता है। इस तरह वो जो दाना था, जो कॉर्न था, वो गिर जाता नीचे, तो हम उसको कलेक्ट कर लेते। तो ऐसे हमने कॉर्न एक्सट्रैक्टर को भी बनाया। बच्चों एक और चीज मैं जो आप यहाँ पर बनाना चाहता हूँ कि अगर ऑनलाइन सर्किट, these all are the ideas that we have adopted and implemented in at Science City. सो इसके बाद हमारे पास होता है कि ऑनलाइन सर्किट डिजाइनिंग। आज के टाइम में क्या है कि आप बाहर नहीं जा सकते, तो मैं आपको एक ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ऑनलाइन सर्किट डिजाइनिंग हो सकती है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, एक tinkercad.com की साइट है, ठीक है। इस साइट से आपने क्या करना है, रजिस्टर करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, रजिस्टर करना अपनी जीमेल, अगर आपकी आईडी है तो वो आपसे पूछेगा कि इफ यू हैव एनी जीमेल आईडी यू कैन रजिस्टर फ्रॉम दैट आईडी। तो आप ऐसे रजिस्टर कर सकते हो बिल्कुल इजीली। उसके बाद क्या है कि उसके बाद आपने क्या करना है, सर्किट डिजाइनिंग पे जाना है। तो आई शो यू कि कैसे होता है ये। सो बच्चों ये है tinkercad का होम पेज, जिसपे आप डिजाइन और सर्किट डिजाइनिंग भी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर ये आप देखिए, साइन इन विद गूगल, ठीक है, आप गूगल के साथ साइन कर सकते हो। तो ये मेरे गूगल का अकाउंट है। तो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड किया। ये बच्चों बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे कि आप सर्किट डिजाइनिंग कर सकते हो। बच्चों ये देखिए खुल गया सर्किट डिजाइनिंग पे। हम यहाँ पर बच्चों को वर्कशॉप्स भी लगाते हैं, 3-3 घंटे की होती है वो वर्कशॉप्स। तो सर्किट डिजाइन कैसे हो, आईसीज का यूज होता है यहाँ पर, माइक्रो कंट्रोलर का यूज होता है। ये देखिए 3D डिजाइन है, सर्किट्स है। तो यहाँ पर आप सर्किट्स पे जाओगे, ठीक है। तो सर्किट पे जाकर आपने क्रिएट न्यू सर्किट, और ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर देखिए आप राइट साइड पे आपको कंपोनेंट्स मिलते हैं। सपोज ये मैंने कंपोनेंट लेना है एलईडी। सो एलईडी को मैंने यहाँ पर रखा। जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हो बिल्कुल फ्री स्पेस है, जहाँ पर अपना सर्किट डिजाइन कर सकते हो। साइड में क्या है, कंपोनेंट्स है, ठीक है। ये सारे साइड में कंपोनेंट्स, जैसे एक एलईडी आपने सिलेक्ट की, उसके बाद मैंने 9 वोल्ट की बैटरी सेट कर ली। अब बच्चों अगेन हमने पढ़ा है कि पोलर कंपोनेंट्स, पोलर मतलब जिनके पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब इट्स वेरी इजी टू डू थिंग्स। ये देखिए नेगेटिव है और ये नोड मतलब पॉजिटिव। तो अगर आपने इसको ज्वाइन करना है तो आपने सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका थोड़ा सा इसको मैं ऐसे रोटेट करवा दूंगा। कैथोड से मैंने कैथोड से मैंने क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल को ज्वाइन कर दिया, क्योंकि दिस इज अ पोलर कंपोनेंट। बच्चों पोलर का मतलब होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स में पोलर का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर मैंने इसके साथ नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर दिया और इसको कलर दे दिया ब्लैक। कलर अपनी मर्जी से दे सकते हो, क्योंकि जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करते हैं कि रेड इज फॉर द पॉजिटिव एंड ब्लैक फॉर द नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव को अटैच कर दिया नोड के साथ, और इसका कलर क्या दूँ, रेड। इट्स वेरी सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, स्टार्ट सिमुलेशन। अब देखिए बच्चे, मैंने एक गलती की, मैंने जानबूझ के यहाँ पर गलती की। सिमुलेशन ये यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा ब्राइट आ रहा है, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है मुझे कि आपने एक गलत लगा दिया। आपने जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं या बैटरी से वो ज़्यादा कर रहा है, आपने एलईडी की कंजप्शन कम है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। चलेगा तो सही, बट ये जल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप इसका कर्सर इसके एलईडी के ऊपर रखोगे तो ये आपको बताएगा कि करंट थ्रू एलईडी इज 915 मिली एम्पेयर। जो मैक्सिमम कितना चाहिए, 20 मिली एम्पेयर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप सिमुलेशन करके ये रियल टाइम आपको रिजल्ट बताएगा। पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस बैटरी को ही रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर बैटरी पे क्लिक करें और मैंने ये बैक स्पेस मार दिया। अब मैं इससे ये बैटरी लेता हूँ 1.5 वोल्ट। मुझे पता है ये 1.5 वोल्ट से ही चलती है, इतनी चलती है। तो आई ट्राई टू मेक दैट नेगेटिव टर्मिनल,
जैसे आपने कर्सर रखा, आपने देखा सेल कैसे होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर देखिए ये कैथोड है, कैथोड का मतलब आपने कहाँ पर नेगेटिव पे ही लगाना है। तो कैथोड को मैंने नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया। सो ब्लैक, देन दिस इज एनोड विच मीन्स पॉजिटिव। कुछ कंपोनेंट्स के पोलर होते हैं, कुछ नहीं होते। जो नहीं पोलर होते तो वहां पर हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव अटैच हो, जैसे मर्जी आप अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको रेड दे दिया। अब ट्राई करता हूँ स्टाइल, देखो ये जल गई, बट इसने कोई इंडिकेशन नहीं दी मुझे। इट मीन्स जितना इसको चाहिए था उतना उसको मिल चुका है। अगर इसकी मैं वोल्टेज बढ़ा देता तो ये क्या होता, यहाँ पर मुझे मैसेज दे देता। तो बच्चों जो हमारी इस एक्चुअल में ये चीज़ें क्यों प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया कि ताकि आप अपनी R&D कर सकें। अगर ये चीज़ मैं 9 वोल्ट की बैटरी लेता और उसके बाद मैं उसको LED के साथ अटैच करता, फिर मेरी वो जो LED वो खराब हो जाती है, ऐसा सर्किट खराब होता है। सो दिस इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। Almost all components are available on this. You can even take this microcontroller, Arduino microcontroller, ठीक है। इस माइक्रो कंट्रोलर, आपको पता है माइक्रो कंट्रोलर क्या काम करता है? ये एक स्टोरेज है, यानी कि एग्जीक्यूट करवाता है प्रोग्राम। तो यहाँ पर भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जो प्रोग्रामिंग होगी यहाँ पर आपको कोड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, यहाँ पर GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग कराई जाएगी आपको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हर चीज GUI बेस्ड हो रही है, ताकि कोड्स को याद करना थोड़ा टफ होता है। GUI बेस्ड में क्या है कि इजीली आपने ब्लॉग्स अटैच करने हैं, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन मेक सर्किट्स। ओके, आई होप यू विल ट्राई। काफ़ी सर्किट्स बना सकते हो, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पर ये न्यू प्लेटफॉर्म है आपके लिए, तो आप ट्राई करिए इसको, सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए। यहाँ पर तो मैंने ये एक आपको आइडिया दिया जिसमें कि ये बताया कि कैसे आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म tinkercad.com www.tinkercad.com पे जाके सर्किट डिज़ाइन कर सकते हो। तो मोस्टली जब हम भी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर में जाके काम करते हैं कि ये एक्चुअल में काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर इंडिकेशन भी आ जाएगी आपको। तो ये थी सर्किट डिजाइनिंग पे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट था। हम आगे चलते हैं। So I'm going to share again my PPT. So this is circuit designing free of cost platform है। अपनी तरह यहाँ पर टिंकरिंग करिए, कुछ भी सर्किट डिजाइन करिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल। स्पीकर भी लगा हुआ है, बैटरीज अवेलेबल है, यहाँ पर कोई पैसा खर्च नहीं करने की जरूरत नहीं है। हम ऑनलाइन वर्कशॉप्स यहाँ से ही करवा रहे हैं और बच्चे बहुत सारे प्रोजेक्ट हमें बनाकर इससे ही दे रहे हैं। सो अब मैं बात करूंगा इनोवेशन का, उसके इनोवेशन हब का। कि जैसे हमें पता है कि 2010 और 2020 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस डिकेड को डिकेड ऑफ इनोवेशंस माना है, तो उन्होंने न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी को नया नाम दिया है, दैट इज साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013। देखिए इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्स्ट बुक्स, दैट्स व्हाट इज साइंस, व्हाट इज टेक्नोलॉजी, एंड देयर इज आल्सो इम्प्लीमेंटिंग, दे आर आल्सो फोकसिंग ऑन इनोवेशंस। क्योंकि सभी को पता चल गया अगर कोई चीज कोई कंट्री इनोवेशंस करेगी वो ही लीड करेगी। सो जो हमने इनोवेशन खोला है, दिस इज इनिशिएशन टू क्रिएशन। हम क्रिएट करना चाहते हैं, वी वांट टू सेट अप अ कल्चर ऑफ इनोवेशन इन अवर रीजन, इन अवर पंजाब रीजन। So PGSE has taken initiative to promote innovation through Innovation Hub. The seed of Innovation Hub has been sown. हमने ये seed लगा दिया है. Now we are going to cultivate the fruits. PGSE is in action to nourish it. अब इसको nourish करेंगे. Nourish कब होगा हमारा जो success तब होगा if you people join with us. You bring your ideas. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर mentors हैं. हर फील्ड के यहाँ पर mentors आपको मिल जाएंगे. अगर नहीं भी है तो हम प्रोवाइड करवा देते हैं. हमारे पास मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, रोबोटिक्स है, ठीक है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सभी के यहाँ पर मेंटर्स अवेलेबल रहते हैं। तो इस जो इनोवेशन हब का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है प्रैक्टिकल लर्निंग। हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई एग्जाम आते हैं तो हम थ्योरेटिकल स्टडीज करते हैं। तो ये जो एक इनोवेशन हब एक एक्सेस देता है कि आपको प्रैक्टिकल लर्निंग करने का, तो आपको एंगेज किया जाता है। हम आपको एक्टिविटीज देंगे, अगर आपके पास नई एक्टिविटीज है तो हम आपको एक्टिविटीज देंगे, वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज आपको देंगे, जिससे कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस जनरेट होगा, आपको इंटरेस्ट आएगा।
एंड हम जो चीज़ करवाते हैं हम कोरिलेट करवाते हैं कि वाकई जो स्टडीज़ आप कर रहे हो इन टेक्स्ट बुक्स वैसा है, क्योंकि स्टूडेंट लेवल पे होता है कि यार ये हमने रीड कर लिया, अब पता नहीं एग्जाम में आएगा, इसको पढ़ लो, रट्टा लगा लो, क्रैम कर लो, पता नहीं हमें प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस देखना, जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको कोरिलेट करवाना। सेकंड इज प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर हम आपको प्रॉब्लम देंगे आप डेफिनेटली सोल्यूशन ढूंढोगे, हमें दोगे आप। थर्ड इज सपोर्ट द इनोवेटिव आइडियाज, कन्वर्ट दैट आइडियाज इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टचलेस सिस्टम को हमने बना लिया, तो हमने यहाँ पर ओनली फॉर द प्रोजेक्ट लेवल नहीं रखा, हमने उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करवाया साइंस सिटी के अंदर। हम और भी इस पर एडवांसमेंट चल रही है हमारी। डस्टबिन देखोगे आप हमारे यहाँ पर इनोवेटिव। और टू रिकॉग्नाइज, इनकरेज एंड फैसिलिटेट्स ग्रास रूट इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो भी ग्रास रूट इनोवेशन को हम उनको इनकरेज करेंगे, उनको आगे लेके जाएंगे। इवन वी विल हेल्प यू फॉर द पेटेंट प्रोसेस। ठीक है, हर तरह की आपकी हेल्प की जाएगी पेटेंट प्रोसेस में। अगर इफ वी फाइंड दैट योर आइडिया इज यूनिक एंड वेरी मच फीजिबल, तो हम पेटेंट के लिए भी बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। लेटेस्ट हमने एक पेटेंट के लिए अप्लाई किया है और वेरी शॉर्टली वी विल गेट दैट पेटेंट। अब हमारी इनोवेशन हब की कंपोनेंट्स क्या है? हॉल ऑफ फेम है, जिसमें हमने बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस, एग्जिबिट्स रखे हुए हैं, जिसका साइंटिफिक प्रिंसिपल हम बताते हैं बच्चों को। जैसे बर्नौलीज हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे प्रिंसिपल्स के हमने एग्जिबिट्स रखे हुए हैं ताकि बच्चों को इंटरेक्ट करवाएं कि इन एग्जिबिट्स को देखो, इनको यूज़ करो। वर्किंग मॉडल्स हैं। सेकंड इज रिसोर्स सेंटर। मैं जहाँ पर बैठा हूँ ये रिसोर्स सेंटर है, ये इनोवेशन हब का रिसोर्स सेंटर है। यहाँ पर पीसफुली बंदा आकर यहाँ पर काम कर सकता है। आपको इंटरनेट रिसोर्स मिलेगा, यहाँ पर लाइब्रेरी हमारे पास है, लाइब्रेरी फैसिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसे टूल्स आपको दिए जाएंगे यहाँ पर कि जिससे कि आप इजीली अपनी स्टडी करवा सको और रिसर्च टाइप वर्क कर सको। यहाँ पर हमारी आइडिया लैब है। आइडिया लैब में हमारे पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल में जैसे होता है कि किसी ने प्रैक्टिकली करना है, तो यहाँ पर वेल्डिंग फैसिलिटीज भी यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। लास्ट है डिज़ाइन स्टूडियो। डिज़ाइन स्टूडियो हमने बनाया हुआ। यहाँ पर बच्चों डिज़ाइन स्टूडियो के बारे में मैं बताऊंगा आगे कि कैसे हमारा इनोवेटिव, जो आज का टाइम क्या है, डिज़ाइन का टाइम है, प्रोडक्ट के डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले बच्चों, अगर फॉर द प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ वी हैव सेटअप आइडिया बॉक्स। यहाँ पर हमारे पास एक आइडिया बॉक्स सेटअप कर लिया हमने। तो यहाँ पर बच्चे जो भी आते हैं, हम उनको कहते हैं कोई भी दिमाग में आइडिया आता है तो वो आइडिया यहाँ पर डाल दो, वी विल रीड दैट आइडिया। हम हंसेंगे नहीं, आप आइडिया डालिए। तो काफ़ी बच्चे आइडिया यहाँ पर डालते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 तो हमने ये ऑनलाइन भी रखा हुआ है आइडिया बॉक्स। जस्ट विजिट अवर साइट, साइंस सिटी वेबसाइट, दैट इज pgsciencecity.org, एंड गो टू दैट इनोवेशन हब। वहाँ पर इनोवेशन हब का लिंक बना हुआ, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर एक आइडिया बॉक्स किया हुआ है, क्लिक दैट बॉक्स। वहाँ पर एक फॉर्मेट है, अपना आइडिया वहाँ बॉक्स पे डाल दीजिए। उन आइडिया को हम पढ़ेंगे, अगर हमें लगेगा तो हम आपको कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर बुलाएंगे और कहेंगे कि हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें। जो चीज़ हमें लगेगी कि ये फिजिबल है एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, विल ट्राई टू परस्यू दैट आइडिया। बेस्ट आइडिया को हम रिकॉग्निशन देंगे, अवार्ड देंगे। इन केस टू गिव अ प्रैक्टिकल शेप, अ डेडिकेटेड टेक्निकल स्टाफ विल बी प्रोवाइडेड। आपको डेडिकेटेड टेक्निकल स्टाफ टीम मिलेगी। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपना आइडिया देना है हमें, ठीक है। उसके बाद हम आपकी असिस्टेंस करेंगे, हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी डायरेक्शंस पे हम इस चीज़ को डेवलप करवाएंगे। इनोवेशन क्लब्स, वी आर एसोसिएटिंग विद कॉलेजेस एंड स्कूल्स थ्रू इनोवेशन क्लब्स। हम क्लब्स बना लेते हैं, उन क्लब्स के ज़रिए हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। वी एंगेज द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट साइंटिफिक एक्टिविटीज़। लास्ट टाइम हमने एक्टिविटीज़ की थी साइंस टॉयज़ पे, और इतना कुछ सीखने को मिला हमें। और हमारे जो रिसोर्स पर्सन थे उन्होंने ये सिखाया कि हाउ टू मेक साइंस टॉयज़। जैसे आप पढ़ते हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक उदाहरण के लिए हमने ये चीज़ बनाई है और बच्चों को बनवाई है। हमने देखा कि आपने सभी ने पढ़ा होगा कि यार पुराने टाइम में किसी ने एक हाथ से उठा ली थी इतनी भारी चीज़। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल, अगर हमें सेंटर ऑफ मास अगर मिल जाए, ठीक है। तो हमने एक चीज़ ऐसे ही ड्रॉ की है कि जैसे आपको लग रहा है ये चीज़ एक बिल्कुल थिन पॉइंट है, अगर आपने इसका बैलेंस करवाना है तो यहाँ पर एक फिंगर के साथ आप बैलेंस करवा सकते हो, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हम साइंस टॉयज एक्टिविटीज़ में बनवाते हैं बच्चों से, ठीक है।
और ये देखिए बैलेंस, परफेक्टली बैलेंस है, जहां मर्जी चाहे सुई की नोक पे आप इसको रख दीजिए, तो इट्स अनबिलीवेबल। और इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है इसके बारे में भी बताया जाता है। वी कंडक्ट वर्कशॉप्स, हम एंगेज करना चाहते हैं। यहाँ पर एक सेक्शन है कबाड़ से जुगाड़, जहाँ पर हमने बहुत सारी वर्किंग मशीन्स, जैसे वॉशिंग मशीन्स हैं, जैसे ओल्ड माइक्रोवेव्स हैं, वहाँ पर रखे हुए हैं, और उनको हम सिखाते हैं कि इसकी रिपेयर कैसे की जाती है, इसके पीछे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है कैसा है। ठीक है, वॉशिंग मशीन्स हैं, उनको बच्चों को कहते हैं इसको यहाँ से खोलो, उस चीज़ को देखते हैं खोल के कि कैसे जो ड्रायर काम कर रहा है। ठीक है, तो कैसे वो जो कपड़े को ड्राई कर रहा है, कैसे वो प्रोसेस, इनिशियली क्या था, पहले आप हाथ से कपड़े धोते थे, ठीक है, मैकेनिकल। अब क्या है कि वोटेक्स टाइप बन जाता है, मशीन में गोल गोल घूमती है वन साइड, उसके बाद दूसरे अदर साइड, तो वही जो प्रोसेस है वो वॉशिंग मशीन करवाती है। तो ये चीज़ें हम बच्चों को कह देते हैं इसको ओपन करो, उसके बाद हम उसका साइंटिफिक प्रिंसिपल बताते हैं। तो इट कम्स अंडर द कबाड़ से जुगाड़। तो जैसे हमारे पास एक और एक चीज़ है हमारे पास, कबाड़ से जुगाड़ में ही असेंबलिंग एंड डिसेंबलिंग सेशन होता है। वहाँ पर हमने अपने मोबाइल फ़ोन्स रखे हुए हैं, वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक आयरन रखी हुई है। तो वहाँ पर बच्चों को कहते हैं इनको खोलो, वहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है वो खोलते हैं, उनके दिखाते हैं कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, जाउल्स हीटिंग इफेक्ट यहाँ पर कैसे नजर आता है आपको, कैसे फॉर्मूला काम करता है, ये चीज़ें हम उनको कबाड़ से जुगाड़ में सिखाते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा बच्चे का, जो भी करेगा ये चीज एक्टिविटीज, उससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दिस इज आल्सो सेट अप अंडर दिस इनोवेशन हब कबाड़ से जुगाड़। सो बच्चों, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंबरशिप। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हमने गवर्नमेंट या चाहे प्राइवेट हो, तो हमारी जो एनुअल मेंबरशिप है वो 500 है। ठीक है, इसी तरह जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने 1000 रुपीज रखी हुई है एनुअल मेंबरशिप। और इस मेंबरशिप के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। यू विल गेट एक्सेस टू दिस इनोवेशन हब। ये इनोवेशन हब 365 डेज है, जैसे हमारा साइंस सिटी का मोटो है कि 365 डेज ओपन रहेगा, ये भी फैसिलिटीज ओपन रहेगी। अगर आपको लगता है कि सैटरडे आना है, संडे आना है, जब मर्जी आइए। ये मेंबरशिप के थ्रू नंबर ऑफ टाइम्स आप यहाँ पर विजिट्स कर सकते हो। और यहाँ पर अगर चाहते हो कि यार आज मैं थोड़ा सा साइंस सिटी घूम लूँ, तो साइंस सिटी विजिट भी आपको फ्री मिलेगी अंडर दैट मेंबरशिप। आपका मेंबरशिप कार्ड इशू हो जाएगा जिसका 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। चाहे रोज आओ, हमारी गैलरीज को देखिए, अपना साइंटिफिक टेम्पर बिल्डअप करिए। ठीक है, हमारे यहाँ पर डायनासोर पार्क है, वो देखिए। अब हमने मूवेबल किया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। Yes, it comes under the you can avail the facilities of Science City visit as well as the innovation hub facilities. यहाँ पर आकर भी आप अपने सीख सकते हो काफी चीजें। ठीक है, इनोवेशन हब के साथ। am I audible to all? So, Yes, sir. You're audible. ओके ओके, तो यहाँ पर मेंशन हो रहा था इंटरनेट Yes, sir. कनेक्टिविटी वीक, सो दैट्स व्हाई। हाँ जी, तो मेंबरशिप बेनिफिट्स है कि 1 साल को आप साइंस सिटी विजिट जब मर्जी करिए। यहाँ पर गैलरीज देख सकते हो, हमारी क्रिएटिव गैलरीज हैं, बड़ी साइंटिफिक गैलरीज हैं, उनको भी आप एक्सेस ले सकते हो। एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको साइंस के अंदर शोज नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट साइंस सिटी विजिट गैलरी यू कैन विजिट, बिल्डिंग के अंदर जा सकते हो आप। ठीक है, एक्सेस टू द लाइब्रेरी एंड ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको मटेरियल भी अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, हमारे पास काफ़ी मटेरियल पड़ा हुआ है। गाइडेंस बाय द एक्सपर्ट आपको दी जाएगी अगर आपका कोई आइडिया है उस पर। स्कूल्स हमारे अंदर विजिट करते हैं, यहाँ पर एक्टिविटीज़ परफॉर्म हम करवाते हैं। रोबोटिक्स का हम वर्कशॉप्स करवाते हैं, एडवांस लेवल की रोबोटिक्स हम सिखाते हैं कि कैसे है। हमने कुछ रोबोट यहाँ पर बनाए हुए हैं, आई विल शो यू दैट आल्सो। ये एनिमल नॉइड कह देते हैं इनको, ये रोबोट्स, यू कैन सी हियर द एलिफेंट्स। तो ये बच्चों ने खुद बनाया है। यहाँ पर हम सिखाते हैं इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, कैसे ये ऑपरेट करते हैं। ये देखिए काफी कंपोनेंट्स का बना हुआ, ये ऐसा नहीं था। ओके, तो दिस इज एलिफेंट। इसके अंदर हमने सेंसर भी किए हुए हैं, ये अपनी ट्रंक को भी उठाता है। ठीक है, ये देखिए, ये सारी चीजें हम बच्चों से करवा रहे हैं ये चीजें। तो जो रोबोटिक्स लैब है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, हम डिस्कस करते हैं आगे। सो साइंस बिहाइंड मिरेकल्स, कुछ हम एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी करवाते हैं जिससे कि आपको ये लगे कि रैशनल थिंकिंग जनरेट हो, कि देयर इज नो
मिरेकल्स, कोई मिरेकल्स नहीं होते, बट देयर इज ए हिडन साइंस। तो उन फैक्ट्स को हम उजागर करते हैं, उनको बच्चों को बताते हैं। तो ये हम वर्कशॉप्स लगवाते हैं। कबाड़ से जुगाड़ की वर्कशॉप हम अपने रिसोर्स पर्सन को इनवाइट करते हैं हरियाणा से, वो यहाँ पर आकर करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वर्कशॉप्स लगाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जिसमें बताया जाता है बच्चों को। हमारे पास बड़े एडवांस लेवल के ये पड़े हुए हैं प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप। ये प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप है जिसपे कि एट ए टाइम 10 पर्सन ईजिली देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की हम वर्कशॉप्स लगा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ काफ़ी, ये देख रहे हो इंजीनियरिंग कॉलेज के हमारे साथ बच्चे काफ़ी जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनोटेक हम हर साल 2 फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, वन फॉर द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एंड वन फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। इनोटेक फंक्शन हम 19-20 मार्च को हम हर साल करवाते हैं, बनाते हैं, जिसमें बच्चे अपनी क्रिएटिविटी की शो करते हैं थ्रू डिस्प्ले ऑफ द इनोवेटिव मॉडल्स। वो अपने मॉडल्स को बनाकर हमें डिस्प्ले करते हैं, और इनके काफ़ी अट्रैक्टिव कैश प्राइजेस बच्चों को दिए जाते हैं यहाँ पर। ये जो इवेंट होता है बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारा। ये दिल्ली, हरियाणा, ये जितने भी नियर बाय हमारे हैं स्टेट्स हैं, उनमें से बच्चे यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह साइंस फेस्ट का भी होता है, जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। बायोलॉजी सेक्शन है हमारे पास, बड़ी अच्छी लैब है, जेल इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस करवाते हैं हमारे यहाँ पर एक मैडम है, जो चेकिंग माइक्रोबियल कंटेंट है मिल्क में, वो चेक करते हैं। ग्राम स्टेनिंग, दीज आर द एक्टिविटीज दैट वी आर डूइंग हियर। एग्जामिनेशन ऑफ पॉन्ड वाटर, अमीबा, पैरामीशियम। इसी तरह केमिस्ट्री की हमारे पास लैब है, वाटर डिस्टिलेशन अपरेटस पड़े हुए हैं हमारे पास, ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मिल्क जैसे हमारे पास फूड एडिटेशन किट्स पड़ी हैं, जिसको हम बच्चों को बताते हैं कैसे करना। 2 तरीके की हैं, एक हम केमिकल के थ्रू करवाते हैं, एक होता है कि दैट जो चीज़ आप ले रहे हो, जैसे मिल्क है या मसाला है, कुछ भी है, हमने आइडेंटिफाई किए हैं 20 से 25 एक्सपेरिमेंट, जो हम बच्चों को बताते हैं कि आप घर पे ऐसे करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये चीज़ प्योर है या नहीं है। जो कि आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है कि जो भी हम खा रहे हैं वो सही नहीं है, उसकी ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हमने फिक्स की हुई है। उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ है, पीएच ऑफ द डिफरेंट फूड आइटम्स, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, क्रोमेटोग्राफी, वाटर, मिल्क एंड सॉल्ट टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ पर करवा रहे हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर करवा रहे हैं। हमारे रिसोर्स पर्सन, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इस पे फील्ड में, वो टाइम टू टाइम बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं कि ताकि वो हर फील्ड में कुछ ना कुछ सीखते जाए। फिजिक्स लैब में हमारे पास रिएक्शन कार हम बनवाते हैं बच्चों से, पेरिस्कोप मेकिंग होता है, प्रैक्टिकल वर्किंग मॉडल वेन डिग्राफ जनरेटर है, सिंपल स्पीकर को कैसा बनाया जाता है, रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में कैसे ज्वाइन करनी है, क्या इसका प्रैक्टिकली होता है, टेस्ला कॉइल्स बनाना सिखाते हैं बच्चों को। यानी कि जितनी एक्टिविटीज़ यहाँ पर मेंशन है, इससे ज़्यादा हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं इस पर। उसके बाद हमारे पास आता है रोबोटिक्स। जैसे आपने ये देखा, तो हमारे पास काफ़ी एडवांस्ड रोबोटिक किट्स हैं, और इसके 2 पार्ट्स है बेसिकली, एक है सॉफ्टवेयर पार्ट है, एक है हार्डवेयर। हार्डवेयर में हमारे पास किट्स पड़ी, तो यहाँ पर बच्चों को हम वेरियस सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स की इंफॉर्मेशन देते हैं कि कैसे सेंसर्स काम करते हैं, उनके पीछे प्रिंसिपल क्या है, उन बच्चों को समझाया जाता है। उसके बाद उसकी असेंबलिंग होती है, असेंबलिंग के बाद उस सॉफ्टवेयर की हम बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं। So these are the activities that we do under this robotic workshops. Obstacle detecting robot बनाना सिखाते हैं, रेन अलार्म सिस्टम बनाना सिखाते हैं, ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोलर सिस्टम कैसे बनाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, आर्डिनो बेल्स माइक्रो कंट्रोलर है, आपको पता है माइक्रो कंट्रोलर बहुत चीज़ें बना सकते हैं हम, उस चीज़ों से ऑटोमेशन पे हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं यहाँ पर। डिज़ाइन स्टूडियो, ये बहुत ही अच्छा फीचर हमने जो यहाँ पर एडअप किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास 3D प्रिंटर है बच्चों, 3D प्रिंटर से आप कुछ भी चीज़ है डिज़ाइन करिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए। यहाँ पर हमारे पास इंडस्ट्रियल लेवल का ये चीज़ है, सॉफ्टवेयर है, डेट इज़ सॉलिड वर्क्स। तो आपने सबसे पहले डिज़ाइनिंग सॉलिड वर्क्स पे होती है। यही अगर चीज़ आपने बाहर से सीखनी है तो आपको काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पर अंडर द मेंबरशिप स्कीम you can perform, we will teach you how the software works. You will learn many more tools in designing. So ये चीज़ आप डिज़ाइन करके you can take the print out of that in solid form, ठीक है। You can see here the rabbit, तो as such उसकी स्ट्रक्चर बाहर आ जाती है। तो हम बच्चों को यहाँ पर कॉन्टेस्ट देते हैं कि डिज़ाइन द फ्यूचर कार्स, उसका डिज़ाइन करिए। फ्यूचर डिज़ाइंस ऑफ मोटरसाइकिल, उनका डिज़ाइन दीजिए। आपको सभी को पता है कि जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है
हमारे जीवन में। जैसे कोई चीज़ है, कोई मोटरसाइकिल अगर मैं बात करूँ प्लेटिना और दूसरी तरफ रखूँ बुलेट, जैसे तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? तो ऑब्वियसली आप कहोगे यार वो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। सो इनफील्ड आपको प्रेफरेंस होगी, इनफील्ड या बुलेट ऐसे मोटरसाइकिल आपको अच्छे लगेंगे। क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि उनके डिज़ाइन की वजह से। इसी एवेंजर्स है आपको, तो डिज़ाइनिंग मैटर करती है हमारे प्रोडक्ट में। सबसे पहले क्या इनोवेशंस के बाद क्या है? इनोवेशंस कब आएंगी? जब आपके पास आइडिया आएंगे, आइडिया को इम्प्लीमेंट किया तो प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट के बाद उसका डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी ने डिज़ाइन के देख के ही उस पर इंट्रैक्शन होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अंडर वन प्लेटफॉर्म दैट इज इनोवेशन वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दैट थिंग्स टू यंग इनोवेटर्स, टू यंग स्टूडेंट्स। डिज़ाइन स्टूडियो में हम ये जो करवा रहे हैं, जो 3D प्रिंटर है मेकर बोर्ड कंपनी का, ये भी अमेरिका का है। यहाँ पर हम बच्चों को उस लेवल पे काम करवा रहे हैं। So I extend my invitation, students, to all. Even teachers can join us. Even normal masses can join us in this under Innovation Hub. There is no restriction, no capping कि हमने students लेने हैं या हमने वो चीज़ particular target group लेना है, ऐसा कुछ नहीं है. It is open invitation to all. कि सभी हमारे साथ जुड़े, जितने भी innovators हैं. All are innovators. We know that. But the thing is, we want to be in safe zone, so that's why we don't want to innovate anything. So अगर आपके पास innovative idea, you can send it directly to through our website that I discussed earlier, ठीक है। विलिंगनेस, अगर आपके पास इनोवेटिव आइडिया है, आप चाहते हो कि उसको प्रैक्टिकल शेप दिया जाए, तो हमारे साथ डिस्कस करिए, कम एंड ज्वाइन विद अस। कोई भी आपको लगे कि हाँ इनोवेशन हब के बारे में पूछना है, तो यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट मी। माय नंबर इज 8146561236, ठीक है। माय ईमेल आईडी is pgseinnovationhub@gmail.com. You can visit our website pgsciencecity.org. Even you can follow our web page, पुष्पा गुजराल साइंस सिटी का वेब पेज फेसबुक पे फॉलो करिए। हमारी इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं थ्रू आउट द ईयर कि इतनी एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं ताकि हम बच्चों को एंगेज रख सकें। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेट अप द कल्चर ऑफ इनोवेशन। So by saying this, I conclude my session here, and you carry your time. Thank you very much, sir. Thank you for the wonderful session. Any questions from students? Anything? Student, do you want to share any your idea here? So if you want to share, बच्चे खुल के बताइए हमें आइडिया, ठीक है। अपने व्यूज बता सकते हो बच्चे, आप कैसा फील कर रहे हो? इतनी बढ़िया सर ने प्रेजेंटेशन दी है अभी, और मैं तो खुद बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ कि कितने अच्छे आइडियाज हमारी इस एज में भी मोटिवेट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी देखिए आपके पास कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जालंधर में साइंस सिटी बिल्कुल आपके पास है। और इवन मैं आपको और एक गुड न्यूज देता हूँ, अगर आप अपने आइडियाज हमें दोगे तो हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, वो 1000 रुपीज भी आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो भी हम कॉलेज की तरफ से, डीबीटी की तरफ से, डीबीटी की तरफ से बिल्कुल, तो वी विल पे। यस, तो इसलिए आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आप लोग फ्यूचर हो सोसाइटी का, आप लोगों ने ही इनोवेशंस करनी है और फ्यूचर्स बिल्ड करना है। तो प्लीज शेयर योर व्यूज। गर्ल्स जो विलिंग है अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, अगर अभी आपके पास आइडिया नहीं है, आप सोचो और बाद में आप हमें पोस्ट कर सकते हो, और हमें अपनी सो दैट वी कैन चूज। लेकिन अपना कंसेंट अभी भी दे सकते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो हैं इसमें करने के लिए, चाहे अभी आइडिया नहीं है, कंसेंट दे सकते हो। अगर आप अपनी मेंबरशिप चाहते हो वहां पर इनोवेशन की, और आप चाहते हो कि आप वहां पर कुछ करो, कुछ सीखो। जैसे मैं इस प्रोजेक्ट तो मुझे हैरानी हुई कि गर्ल्स ने इतने अच्छे आइडियाज दिए हैं हमें थ्रू आउट। जैसे BMI मशीन है, और भी आइडियाज दैट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज राइट नाउ बिकॉज दे आर इन द प्रोसेस, कि हम चाहते हैं उसको पेटेंट हो जाए। तो बच्चों ये नहीं सोचना कि मैं गर्ल हूँ या मैं बॉय हूँ तो मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, ये वो चीज़ नहीं, ये लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। आइडिया जैसे मर्जी जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको एक देता हूँ, तो उस पर आप सोचिए। जैसे फैन क्लीनिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब दिवाली होती है तो सभी की मम्मी कह देती है ये साफ करो। तो हमें कुछ ऐसे आइडियाज आपको देने पड़ेंगे जिससे कि हम फैन क्लीनिंग में इजी
वे ढूंढ सके। ठीक है, हमारी गाड़ियों की हवा जैसे कम हो जाती है तो हमारे उसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूल कंजप्शन पे पड़ता है। क्या आप ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते, क्या हम अपनी गाड़ी पे बैठकर ही, एक और है, क्या हम अपनी गाड़ी पे बैठ के ही जैक लगा सकते हैं, कुछ बटन लगा दें और ऊपर अपलिफ्ट हो जाए। आप ये these are the problems that us, but हमें बच्चे ये आपके सॉल्यूशंस अगर ढूंढ लो कि अगर ऐसी चीजें इंप्लीमेंट हो जाएं रियल लाइफ में, जैसे गाड़ी अगर खराब हो जाए तो जैसे टायर फट गया तो आपने रिप्लेस करना है, सो इट इज वेरी टफ टास्क, आपको उतरना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल कोई चीज हो अपने आप वहां पर लग जाए, सेट हो जाए? सो ऐसे आइडियाज आप सोच सकते हो। अंशुमन ने अपने काफी ऐसे आइडियाज हैं। express she is interested. और स्टूडेंट्स बेटा, अंशुमन has expressed in chat box she feels motivated. और स्टूडेंट्स? सर वी विल डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स जरूर ज्वाइन करेंगे, वी अश्योर यू, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी। Yes, sir. Yes. वी विल डेफिनेटली अगर आपके भी आइडिया तो आप बता दीजिए। ठीक है, तो ये चीजें जो बच्चे अब सोच सकते हैं, मैंने इनको टास्क दे दिया ये। ठीक है, आई सी कि कौन अपने जो इस टास्क को पूरा करेगा, कौन हमें अपने आइडियाज भेजेगा। ठीक है बच्चों, और ट्राई करिए हमारे साथ जुड़ने की। जैसे कि यहाँ पर जो एम्बियंस है वो बिल्कुल साइंस का एम्बियंस है, यहाँ पर मिलेगा आपको हर चीज नहीं है। हम नेक्स्ट जो आने वाले सालों में हमारी और गैलरीज बन रही है, रोबोटिक पार्क हमने सेटअप किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप एक साइंटिफिक लेवल का जो एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, अगर आप R&D करना चाहते हो यहाँ पर करें। कॉलेज में मैडम ने बताया कि काफी आपके प्रोजेक्ट चलते हैं, वहां पर भी कर सकते हैं, बट शेयरिंग ऑफ आइडियाज होना चाहिए। हमारी एसोसिएशन ऐसी होनी चाहिए जिससे हम फ्रूटफुल रिजल्ट निकालें। आइडिया आइडिया ना रहे, आइडिया प्रोडक्ट में हो, और प्रोडक्ट इट शुड बी यूजफुल फॉर द सोसाइटी। सो हमारी अप्रोच है कि हम इम्प्लीमेंट करें जो भी हम कर रहे हैं, जैसे डस्टबिन का मैंने बताया या टचलेस का, वो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि हम इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह हमारा एक प्रोजेक्ट था ऑटोमेटिक, वो सैनिटाइजर था, वो मैंने डिस्कस नहीं किया, मे भी शायद डायरेक्टर सर ने उन्होंने डिस्कस कर दिए हों सारे जब। तो वो चीज़ें थी कि ऑटोमेटिक सैनिटाइजर बनाया हुआ है जिसकी कॉस्ट 150 mm। तो हम जैसे भी अंदर आते हैं, टचलेस है, जैसे ही हम हाथ करते हैं तो वो सैनिटाइज इजीली हो जाता है हमारा। तो बिल्कुल 150-60 की कॉस्ट में हमने ये चीज़ किया हुआ है। तो Very ऐसे nice, बच्चे sir. जो आइडियाज हैं, जुगाड़ विच मैं बात कर रहा था जुगाड़ की, तो जुगाड़ एक राह सोल्यूशन होता है। कई बार ये परमानेंट सोल्यूशन भी बन जाता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ों को अपनाने से हमारी अगर एफिशिएंसी बढ़ जाए किसी चीज़ की, तो ये काफ़ी अच्छा होगा हमारे लिए। तो उससे पहले हमारी इमेजिनेशन जो होनी चाहिए वो जागती रहनी चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस होते रहना चाहिए। मोर ओवर इम्पोर्टेंट इज एंगेजमेंट इन साइंटिफिक एक्टिविटीज़। वही चीज़ हम अंडर इनोवेशन अब ये बच्चों को मोटिवेट करते हैं, प्रैक्टिकल सेशंस करवाते हैं। सो ये चीज़ होती है बच्चों। Thank you, sir, so much for your wonderful presentation and all that. Thank you so much, sir. Sir, I am sure our students will do. अभी Thank you, students आगे thanks a नहीं आ lot. रहे हैं, लेकिन with the passage of time, they will take with their time to think over, and they will definitely share their ideas. ठीक है मैम, ठीक है। In the coming जैसे days, ये कोविड-19 की सिचुएशन खत्म होती है तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि एसोसिएशन हो, अच्छी हो एसोसिएशन हमारी, और हम कुछ करें सोसाइटी के लिए। Yes, sir. yes sir, definitely sir, होगा और students करेंगे, I am sure. ठीक है। Thank you so much sir अगर कुछ Thank you for so पूछना your much, sir. साइंसिटी valuable के बारे time. में पूछ सकते हो कोई भी। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। Thank you sir. इट्स रियली फीलिंग प्रिविलेज टू बी इनवाइटेड थैंक यू हियर। सर, थैंक यू थैंक सो यू, थैंक्स मच। अ लॉट। Thank you sir. Hope to meet you in the coming days. Thank you sir. Bye bye. श्योर मैम, श्योर मैम। हाँ, ओके मैम, ओके, टेक केयर मैम, ओके।